Eh, Mhm. So prem is not, actual not prem is coming in there. Yes. Mhm. Because when you deeply analyze what is the love, Mhm. how we use this word love. Yes. Love is that is love is this word is when the ashraya and vishay, these two tattva Mhm. is there. Meeting two tattva. Yes. That love is coming. Mhm. Srimati Radhika, the Manjaris or Sokis of Srimati Radhika, they serve the Srimati Radhika. Mhm. We are saying this is love. This is not also love. Mm. Because Srimati Radhika sees Ashraya Tattva. Yes. Eh? Our Manjaris or Sokis, they are Ashraya Tattva. Mhm, So mhm. Ashraya Tattva, Ashraya Tattva meeting together, can love create? Mm. Love create when Ashraya and Vishay. This is the thing. The people, they can understand these things. Mm. Because they have no idea what is the definition of love. Yes. Love is that. So there's no prem between Manjaris and Krishna. and Krishna. And Manjari is Krishna, they are love, because Krishna is Ashraya, Vishay Tattva. Mhm. Vishay Tattva, when you need Vishay Tattva, without Vishay Tattva, love will not create. Simply, Tattva Siddhanta. Mhm. Srimati Radhika, what Tattva? Ashraya Ashraya. Tattva. Manjari is what Tattva? Ashraya. Ashraya Tattva. So Ashraya, Ashraya, they meeting together, can create the love. No. Mhm. So where does the Manjaris prem come from? Huh? Where do Manjaris come from, this is not our subject. where do they get prem? Come from, where you come from, this is not there. How the prem creates, love creates. Mhm. When you discuss about the love is coming from where? Mm. What is the philosophy of love? Mhm. Love is a Vishay Tattva. Without Vishay cannot love. Object of love. Object, One is the shelter of love. shelter of love or object of love? Object. The object of love has to be there. Really. Because our Vishay only one Vishay Tattva. That is called Krishna. Mhm. अकेला पुरुष कृष्ण आर सब तृप्त जारे जैसे नचाए तैच करी ओए अबरू Oh, don't worry. अबरू okay good first understand how love creates. Mhm. So Manjari they can love Krishna. When Radha and Krishna they can Radha Krishna that is called Vishay Tattva. Both. Then Manjari they are called Ashraya Tattva. Lalita Abhisheka they serve to Srimati Radhika Naik. जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करण ललित दादी सखी जन जुगल. Mhm. So when Radha Krishna they are jugal, they are Lalita Abhisheka they are serving. That is called prem. That is called. And similar for the Manjaris. Same. Because when that time Radha Krishna is Vishay Tattva, both are Vishay Tattva now, conjugal Vishay Tattva. Now they are Ashraya Tattva, so that is a prem time. And when there is separation, so the question will come, so Manjari, Sokis, they also separately serve to Srimati Radhika. So what is that? Mhm. Maybe your question will come. Yes. Huh? Sokis, they also serve to Srimati Radhika inconfidently, putting cloth and what is called Dressing, Bombay, ornament. dressing up. That is what. Because this is love, because all their activities for Krishna. Mm. For this regard, we think love. Because if Srimati Radhika, if Srimati Radhika's cloth and everything will decorate nicely, then Krishna will be happy. So that means they are doing everything for pleasure for Krishna. Their meditation is on Krishna. You understand or not? Mhm. Sati, Lalita Devi or Mani, they are good dressing to Srimati Radhika's cloth. Mhm. And why? For Krishna's pleasure, Radharani's pleasure. Mhm.
Krishna's pleasure. Huh? Krishna's pleasure. Krishna's pleasure. They are service to, they are dressing to cloth of Srimati Radhika, not the pleasure of Srimati Radhika. That's the pleasure of Krishna. huh? So this is love. Then come into sadhak dasa also. I serve my guru. Why? This is love or not? First I do not love. Now it establishes also love. Why? Because if I serve the Guru, then Krishna will be pleased with me. Because Guru is very near this of Krishna. Aradhanam sarvesam Krishna aradhanam param. Tasmat prataram devit tadyanam samachya. Gurudev is very near this of Krishna. But sadhak, when you are not coming upper level, they are thinking, okay, all my activity is the special pleasure for Guru. That is sadhak, another thing. Sadhak level, two levels. One is level very higher, another is very low. This lower level in coming, that time, okay, I'm my main object, how to give Vishnu pleasure to Guru, not pleasure to Krishna. But when you come in the upper level, that time all your activities is what is pleasure for Krishna. Even when Gurudev is there, Huh? even while serving Gurudev, Yes. in the highest stage of sadhak, Yes. while you're serving Gurudev, your pleasure is for Krishna. Krishna. Your Krishna will please. These are all considered. But this is very high level. If you, general people, they can understand. If I tell these people, their mind would be disturbed. So which stage is Because they this? are not the same level. At the stage of Asakti and Bhavadasha. Ashakti. Understand? Asakti or Bhavadasha, that time that we can. I am servicing Guru, pleasure for Krishna. Because that time all their activities is pleasure for Krishna. Because bhakti definition is coming in this way. Anna vilasita sunyam jnana paramatana anukulana Krishna anusilana. Krishna Anushila. Krishna anusilana. Sildhatu. Anusilan. Anuman continuously. Sildhatu. Pritarte sildhatu. Priti. Priti. So Priti for whom? Vishnu. This is the thing. Even gopis also they are doing everything for Krishna. Krishna pleasure. If they are doing himself, herself, also that is for pleasure for Krishna. One Manjari is putting kajal, the eyes of Srimati Radhika. Why? Pleasure of For Krishna. Raja, pleasure for Radhika, pleasure for Krishna. Pleasure of Krishna. Pleasure for Krishna. So at that high level of sadhak, what is the relationship with Srimati Radhika? Huh? At the sadhak stage of bhav, Sadhak when coming bhav, that time there is your word. Sadhak, which stage is called sadhak? Asakti tak sadhak. Then bhav and that. yeah, That's called bhav sadhak. Just using this word bhav sadhak. So it is sadhak bhakti, bhav bhakti and prema bhakti. Sadhak stage, but sadhan stage this. at that stage, what is the relationship with the sadhak So to first Shiva? you try to understand which is called sadhak. What is the definition of sadhak? Yeah. So Bhakti Rasamrita Sindhu. Now Bhakti Rasamrita Sindhu will also explain the definition of sadhak. Have you read the definition of sadhak or not? Never. So if I tell you what, nothing. Which is called sadhak? Sadhaka परिवृत्तिता. साधक कहाँ पर साधक होता है? कौन स्टेज पर कहीं से जाने से साधक होता है? किसको साधक कहता है और किसी को सिद्ध कहा जाता है?
clear. कृष्ण दर्शन करने की they are qualified to take darshan to Krishna, but some kinds of impediment coming. For this regard, they cannot to direct to take darshan to Krishna. And that stage is called sadhaka parikirtita. Utpanno ratayo sammaka. They about to attain the stage of rati. Rati almost manifest in their heart. Sakshat Krishna Darshana Yoggata. They are qualified to take darshan to Krishna. But some kinds of impediments, kasai, impediment is there. But still cannot take darshan to Lord. That stage is called sadhana. This is the definition of sadhana. The high level sadhana. That is a very high level sadhana. That was a real sadhak. We are even not sadhak, we are then maybe sadhakabhas. Sadhak, sadhakabhas. As a Harinam, Namabhas. Nam, Harinam, Namabhas. Siddha Nam. We are maybe just sadhakabhas. Sadhak means that you come in this Utpanno ratayo. Utpanno ratayo Krishna. Darshan sakshat. Yoggata. They are qualified to take darshan to Krishna. But not possible. Some impediments. Badha is there. And the sadhak realizes this. He has realization of Realization another thing, but that direct darshan is another thing. Realization not means the only darshan. Darshan direct see to that time realization both. Take darshan, realization in the beginning also there. Some realization everybody has. No, but does the sadhak know what these obstacles are? Can the sadhak remove those obstacles by his own or by the mercy of the Lord? That is by mercy of Krishna, that obstacle will be removed. He cannot remove. But what kinds of obstacles are there? Maybe some smell of Vaishnava Aparad. No Vaishnava Aparad, smell of Vaishnava Aparad. Vaishnava Aparad की कौन सा शिकायत है? उत्पन्न रतयु सम्मुख कृष्ण दर्शन साक्षात योग्यता. कृष्ण दर्शन करने के लिए साक्षात योग्यता प्राप्त करें. किंतु सम ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं दर्शन करने का. उस स्टेज में जब अर्थात रोटी उत्पन्न हो गए, अभी भाव नहीं है, भाव के निम्न स्टेज पे रोटी का होगा. उत्पन्न रतयो सम्मुख कृष्ण दर्शन साक्षात योग्यता. That stage is called sadhana. So who is that? Sadhana. Billamangalo sadhaka parikirtita. Billamangal Thakur sadhaka. He took darshan to direct darshan to Krishna. Krishna came and Krishna hold his hand. Direct Krishna came and hold his hand and lead to him. Going to Vrindavan. That is a different type of darshan, not darshan with the eyes. Which eyes? It's not physical eyes, but his. पागल. आप फिजिकल ऐसे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते. फिजिकल ऐसे इस आंखों की तरह भगवान के दर्शन नहीं कर सकते. See the Lord with these eyes. तो फिर अब इस आंखों गिर जाए. नहीं, क्योंकि वो आँख निकाल दिया था ना, वो बिल्वा मंगल.
आपके दिमाग में काम नहीं करता है तो मैं क्या आँख निकाल दिया नहीं देती वो तो प्राकृत आँख है दिव्य वो अंतर्चक्षु से दर्शन से दिव्य नेत्र जिसको कहा गया ट्रांसेंडेंटल आईज क्लैरिफाई आप इस आंखों की तरह भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, ये तो जड़ा आंख है। इस जड़ा आंखों की तरह भगवान दर्शन नहीं होता। भगवान के दर्शन करने के लिए अपराकित दिव्य नेत्र, जैसे संजय के दिव्य नेत्र वो देख रहे हैं, क्या जड़ा आंख में देख रहे क्या? कुरुक्षेत्र तो हस्तिनापुर कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर है। तो वो यहीं से कैसे देख रहे हैं? हम तो 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 3 किलोमीटर, वो इसके आगे हम दिखा नहीं पाता है। तो 300 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कैसे दिख रहे हैं? क्या जड़ों आंखों से दर्द दिखा तो कैसे देखे? दिव्य नेत्र के द्वारा। इसमें तो लिख रहा है, गीता में तो लिखा व्यास प्रसादीन, व्यासदेव की कृपा, व्यासदेव ने जो कृपा किया और उनके दिव्य नेत्र से यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर क्या है। तो बिल्वमंगल जो देखा, क्या जड़ आंखों के द्वारा? ध्रुव भी देखा भगवान को, क्या जड़ आंखों के द्वारा देखा? कभी कभी साधक, जैसे आप बोल रहे हैं, आपके लिए भी कहा गया शास्त्र में, बृहद भागवत में कह रहे हैं, साधक सोचते हैं, जब साधक इस स्टेज में आते हैं वो सोचते हैं मैं इस आंखों की तरफ देख रहा हूँ। जैसे ध्रुव सोच रहे हैं, नारायण प्रकट हुए, ध्रुव सोच रहे हैं मैं इसी आंखों की तरफ देख रहा हूँ, जड़ आंखों की तरफ। जैसे आप बोल रहे हैं ना, वही आपके विचार है, जड़ विचार। एक्चुअली उस आंखों की तरफ नहीं देख रहे, उसके दिव्य नेत्र की तरफ। ये तो आंख है ही है, किंतु उस आंखों की तरह नहीं देख रहे, उसके दिव्य नेत्र उसमें सोच रहा है मैं इसी आंखों से देख रहा हूँ। उसी प्रकार जड़ बुद्धि वाले जो होते हैं वो सोच रहे हैं ये मैं इस आंखों की तरह देख रहा हूँ, लेकिन ध्रुव तो इस आंखों की तरह नहीं दर्शन किया। जिन भगवान अपराकृत दिव्य शरीर है, उसके अपराकृत दिव्य नेत्र की तरह दर्शन है कि नहीं? उसी के कहते हैं आत्मदर्शन कहा गया। आत्मा की जो आंख है उसी आंखों की तरह दर्शन होता है। आत्मा की भी आंख है, आत्मा की भी नाक है, आत्मा की कान है, आत्मा की जैसे इधर मध्य हाथ है, पैर है, सब कुछ है। जब साधक उसमें आते तब उसकी आत्मदर्शन, तब वो आत्मा की आंखों के द्वारा वो केवल जो एक ऊपर की जो आंख है, एक केवल मात्र प्रतीति होता है। प्रतीति समझते प्रतीति, जैसे उसके he is thinking I am looking in these eyes, actually not these eyes। ये आंख को बंद करे और खोल करके रखे, इस आंख से भगवान के दर्शन है। आप अन्य करते हो, आंख बंद करके करते हो कि आंख खोल करके करते हो? कभी बंद कभी खुले है। क्यों आंख खोलते हो, क्यों आंख बंद करते हो? क्या बात बताते हो? हमारे ध्यान बढ़ जाते हैं जब आंख बंद करते, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। There's no distractions when you close your eyes। आंख क्यों बंद करते हो? हम लोग आंख क्यों बंद भी करते हो, क्यों खोलते क्यों? क्यों? ध्यान तो होता है मन के द्वारा, ध्यान आंख तो कुछ नहीं करते। जब तक हमारी आंख इसलिए बंद करने के लिए कहा गया कहीं, क्योंकि जिसके मन स्थिर नहीं है, चंचल मन जो है, जब कोई वस्तु का हम देखते हैं उसी के ऊपर हमारी चिंतन आ जाता है, ध्यान हमारे टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बच्चा, आपके बच्चा बैठा है, आप आंख बंद करके करो तो बच्चा क्या कर रहे हैं आपके कोई जाता है। आंख जब खोल करके देखोगे तो बच्चा क्या कर रहे हैं उसका आपको याद हो जाएगा। तब आपके मंत्र की जो ध्यान भंग हो जाए, वो ध्यान भंग हो जाए। जैसे आंख बंद करोगे तो बच्चा जो करे, मर रहे हैं तो जिन्हें तो आप जब आपके इंद्रिय जब परिभूत हो जाता, पंजीकृतन हो जाता, पंजीकृतन मैंने फोकस एकत्रित हो जाता है, सारे इंद्रिय समेट लेते हैं। एज लाइक जथा कुर्मो एवं, जैसे कछुआ
जैसे अपने सारे इंद्रियों को अंदर में जैसे समेट लेते, समेट कि नहीं, withdraws inside itself. तो जब इनसाइड कर लेते हैं, जो व्यक्ति उसी प्रकार अपने इंद्रियों की वशीभूत करके कर लेते हैं, तब उसके बाहर की कुछ वस्तु को उसको कोई असर नहीं पड़ता। तो उस समय वो आंख बंद करके करे और आंख खोल करके करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अपनी इंद्रियां आदि को जब मैं समझ नहीं पा रहे, समझ मतलब एकत्रित करें, जिसे कहा जाता है पंजीकृत कहा जाता है, एकत्रित कर नहीं पा रहे, तब आंख बंद करके करो, इस वस्तु की कुछ दिखाई नहीं पड़ा, जड़ आंख तब वो करते हैं। जब वो इंद्रियों की जब पंजीकृत कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, एज लाइक ए टोटस, तब उसको आँख खोल के करे, आँख बंद करके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय उसको दिखाई नहीं पड़ता, उनके ध्यान भगवान की तरफ जाता है, उसका मन विचलित नहीं होता, उसके नाम विचलित नहीं होता, बात सही। और फिर भगवत दर्शन आदि जो हम करते जा रहे हैं, वो ये आंखों के द्वारा होगा ना इस मन के द्वारा होगा, क्योंकि ये आंख आदि जो है, मन आदि, ये सभी जड़ कहा गया। ये ग्रॉस बॉडी और सेटल बॉडी दोनों ही तो जड़ है। तो उस समय जो दर्शन आदि की बात कर रहे हैं, वो आत्मा के आंखों के द्वारा वो दर्शन इसलिए कह रहे हैं, बृहद भागवतामृत में कह रहे हैं, गोप कुमार के कहा, जब गोप कुमार उस लोक में गए, क्या बोले, जनलोक आदि में गए, तपोलोक आदि में गए, जहाँ पर तपस्या करने वाले लोग गए, उस समय ध्रुव के कहने, ध्रुव के गोप कुमार के कहने, गोप कुमार तुम इस स्थान के छोड़ करके कहाँ जाओगे, इस स्थान से छोड़ करके तुम्हारे फायदा कुछ नहीं। देखो हम लोग यहीं पर प्रभु के नित्य ही दर्शन करते हैं। बोले कैसे? हम लोग ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान से हमें दर्शन होता है। क्योंकि ध्यान से कैसे, ध्यान तो आंख बंद करके कर रहे हैं। मुनि लोग जो ध्यान करते हैं आंख बंद करके करते हैं, तो भगवान के कैसे दर्शन हो रहे हैं? बोले ये जड़ आंखों की तरह भगवान दर्शन नहीं हो रहा, ना होता है किसी को। अपराधी तो चित्त वस्तु उसमें जब क्या बोलते संलग्न होता है, लगते तब भगवत दर्शन होता है। जिसी का तदात्म भाव कहा गया। जनलोक तपलोक में भी वो भी जो दर्शन आदि भगवत है, उसमें तदात्म भाव होकर के दर्शन होता है। वो भी उनकी अभी तक दिव्य नेत्र आदि नहीं आता है। दिव्य नेत्र तब आता है जब ये इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ, ब्रह्म सत्यलोक के पार करके जब जाते हैं, तब दिव्य दर्शन होता है। ऐसे तो उस समय भगवान जो मुनि ऋषि लोग और तपलोक आदि में जो लोग रहते हैं, वो ध्यानों के द्वारा भगवान के कैसे दर्शन करते हैं ना, उनकी उसी प्रकार उत्कंठा आदि देख करके भगवान क्या कहते हैं, तदात्म करा देते हैं। इससे उनके आत्मा की जो आंख है, ये जो आंखों के द्वारा ये तदात्म करा करके दिखाते हैं। तदात्मा Like similar one soul. तदात्म शब्द की अर्थ होता है जो कोई वस्तु की अपने क्रिया दूसरे में रिफ्लेक्ट कर देना है। जैसे लोहा और अग्नि, आग जो है वस्तु के जला सकती है, लोहा जला नहीं सकते। जब वही लोहा की जब आग में प्रवेश करा देते हैं, तो अग्नि के जो शक्ति जो है, क्या शक्ति,
जलाने का जलाने की। जलाने की शक्ति जो है उसमें लोहे में प्रवेश हो जाता है, तो तदात्म हो जाता है। उसके गुण वो तत्व लोहा जो है कोई वस्तु के जला सकते हैं, तो क्योंकि अग्नि उसमें तदात्म भाव होता है। ऊपर से अग्नि आग दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोहे में आग का फ्लेम दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल लाल लाल हुए, और उस रॉड के बल लोहे के यदि टाइम पर प्रेशर करते वो जला दे कि नहीं जला, लकड़ी को जला दे, तो उसमें आग क्या हो गया, तदात्म हुआ, उसके तदात्म कहा जाता है। वननेस विथ हिज पोटेंसी, दैट इज कॉल्ड तदात्म। अपनी शक्ति के साथ उसमें एकत्रित हो जाना, उसकी तदात्म कहा जाता है। ये जो जड़ आंख जो है, इस आंखों की तरह हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जो हमारे आत्मा की जो आंख, इस आंखों की, वो आत्मा की आंखों की शक्ति जो है, इस आंखों के जब आ जाता है तब भगवान की हम देख सकते, क्योंकि आत्मा की आंखों की शक्ति के तदात्म जो है इसमें हो जाता है, तब हम देख सकते हैं। और फिर आगे बढ़ करके हम जनलोक, तपोलोक, सत्वलोक आदि पार करके चले थे, वैकुंठ आदमी जब जाते हैं तब यहीं पर वहाँ पर एक जड़ शरीर नहीं रहता, तो देयर आर नो क्वेश्चन जो तदात्म। समझ में आ रही? जब वैकुंठ में चले जाते हैं तब आपके शरीर आत्मा शरीर ही होता है। आत्मा के जो शरीर है, हाथ पैर है, वो शरीर होता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जब कोई साधक रहता है तब उसके जड़ शरीर तो विद्यमान है। समझ में आ रही? ये शरीर रहेगा उसका, स्थूल और सूक्ष्म शरीर रहेगा उसका। लेकिन जब विरजा के पार करके जब जा रहे हैं तब तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को छोड़ देते हैं, तब वो आत्मा शरीर, अपरागित शरीर, जो आत्मा के शरीर जो है उससे जाते हैं। उसी की कहा जाता है स्वरूप उपलब्धि होता है। तब उस समय जो साक्षात जो भगवान के दर्शन करते हैं, वैकुंठ आदि में जो वैकुंठवासी जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उस समय उनके अपरागित शरीर कलेवर, उस समय आत्मा शरीर के द्वारा भगवान के दर्शन होता है। इस जगत में संभव नहीं है। इस जगत में तदात्मा पर कभी कभी भगवान कृपा करके किसी को क्षणकाल के लिए दर्शन दिए, जैसे नारद जी के कहा गया है, एक क्षणकाल के लिए भगवान उनकी जय दिव्य दर्शन दे, तो नारद निश्चित। नारद जी कथा सुना कि नहीं? पढ़ा तो करो, नारद चरित्र पढ़ो। तो जब हम ठाकुर जी के दर्शन करता है मंदिर में, कोई तस्वीर और फोटो चित्र है, वो क्या होगा? बताइए। वो इम्पोज, आरोप कर रहे हो, वो तो इम्पोज है। साधु जी जो करो उसके संग कहा जाता है। साधु क्या? अभी जो आपके अधिकार के अनुसार 3 लेवल है यार, एक साधन, आरोप सिद्धा, आरोप सिद्धा, एक संग सिद्धा और एक स्वरूप सिद्धा। अभी जो साधु से जो सुन रहे हो वो बात पता चले, ये इसको कहा जाता है संग सिद्धा अधिकार। संगीन सिद्ध जायती समय सिद्ध। जब बिना साधु से जब भगवान के दर्शन करो, अकेला जी दर्शन करो, आरोप सिद्ध भक्त, वो आरोप कर रहे, वो आरोप करते हैं। ये ठाकुर कैसे सुंदर है, ये मार्बल कहाँ की है, जयपुर के है, ये ब्रोंज है कि नहीं, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठाकुर की आँख है कैसी है? इसको तो आरोप सिद्धा भक्ति का है। साधु से हम जो बैठ करके सुनते, अभी जो हो रहा है अधिकार, उसका हम संग सिद्ध करते यार। संगीत में सिद्ध जाए तो सब गुण आदि आते हैं, तो थोड़ा आगे अपर लेवल में आ जाए। पर इसके बाद जब चले जाते हैं स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं।
इसलिए जब तक वैकुंठ में नहीं जा रहे तब तक इस जगत में आपके शरीर रहता है। ऐसा नहीं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तब तक रहेगा है? अच्छा चेकिंग तो करके आओ। 2 मिनट है 1 मिनट है, क्या अब देख लेता हूँ कि खुल गया क्या। नहीं लाइन में तो खड़ा होना पड़ेगा।